Hi friends. Friends, today is the second lecture of thermodynamics topic. Okay, we are in the second lecture of thermodynamics, which is under the heading of important topics of physics. Okay? And those topics normally useful for 11th and 12th science students as well as for the competitive exams like NEET, JEE, MSCET, etc. Friends, in the first lecture we have studied that is what is the meaning of thermodynamics, what is its definition, as well as the various thermodynamic systems like open system, closed system, isolated system. Now in this today's lecture we will continue further and we will start the topic of thermodynamic properties. What is meant by thermodynamic properties? Friends, what is the meaning of property first? The characteristic features that describe the system. What is the meaning of simple meaning of thermodynamics? The characteristic features that describes the system can be called as a properties. Now, what are the thermodynamic properties? और सिंपल अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट क्या है कि फीचर्स है जो डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम को. बट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, वेलोसिटी एटसेट्रा. देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज. बट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के भी दो टाइप हैं. ठीक है, दो टाइप हैं. एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. दैट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज. लाइक फर्स्ट वन इज द intensive properties, okay, and second one is the extensive properties. Now, what is the meaning of intensive property and extensive property? Intensive property means the property which is or the properties which are independent of the mass. Okay, the properties which are independent of the mass can be called as a intensive properties. जो कि mass पर depend नहीं है, they are independent on the mass. What is in short? Independent of mass. Okay, intensive property means the properties which are independent of mass can be called as a intensive properties. Extensive property क्या होगा? उसका opposite, the properties which are dependent on the mass. Independent on mass. Okay, that means simple जो definition है वो क्या है? Properties, thermodynamic properties, there are two types: intensive, extensive. What is meant by intensive property? The properties or thermodynamic properties which are independent on the mass can be called as intensive property, and the properties which are dependent on the mass can be called as an extensive property. Now, intensive and extensive आपको याद कर सकते हो. एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है ना. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट सब प्रॉपर्टीज देंगे, पूछेंगे इसमें कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कौन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. ये क्वेश्चन पॉसिबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पहले याद रखना है कि प्रॉपर्टीज जो होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इतना समझ में आ रहा है हमको कि इंटेंसिटी मींस इंडिपेंडेंट ऑन मास, एक्सटेंसिव मींस डिपेंडेंट ऑन द मास. अभी दोनों का डिफरेंस समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, मास पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, वो है टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा. ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं. उसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल जो है वो है वॉल्यूम, ठीक है, उसी तरह से एनर्जी एटसेट्रा. ओके, और सारे बहुत से एग्जांपल. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या है? वॉल्यूम, एनर्जी, इंटेंसिटी क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, अभी पहचाने कैसा हम? ये पहचानने का तरीका जो है, फॉर एग्जांपल कि भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से हैं. सपोज ये समझने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज एक रॉड है, सपोज देयर इज अ मेटालिक रॉड, देयर इज अ मेटालिक रॉड. एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आएगा आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से हैं.
सपोज एक मेटेलिक रॉड है, ओके, सपोज उसका जो मास है ना, फॉर एग्जाम्पल उसका जो मास है, सपोज कितना है, उसका मास है 100 kg, उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। साथ ही साथ इसका हम लेंगे सपोज प्रेशर, जो इस पे प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है, वो प्रेशर है सपोज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, कोई एक्सटर्नल लोड एक्ट प्रेशर एक्ट हो रहा है। मास कितना है 100 kg, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझने के लिए मैं सिर्फ करूँगा, इसको हम एक इमेजिनरी हाफ पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो रॉड है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, सपोज निकल लिए, सपोज एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर ले हम, तो क्या होगा, अगर इसका सपोज अगर हाफ पोर्शन कट कर लीजिए, टोटल मास कितना है इसका 100 kg, तो ये कितना होगा फिर 50 kg, 50 kg, दैट मींस जो टोटल मास है वो क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं m/2, यहाँ पर कितना होगा m/2 डिवाइड होगा यहाँ पर मास, है ना 50 kg। उसी तरह से अब सपोज 50 डिग्री टेम्परेचर जो है, ये क्या है मैं बताऊंगा आगे, पहले ये समझिए, m/2 यानी 50 kg और 50 kg है। टेम्परेचर कितना है ये रॉड का 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट इज T/2, जैसे यहाँ पे मास कितना होगा अभी 25 kg, ये भी कितना है 25 kg, बिकॉज सॉरी टोटल मास इज 100 kg, ये कितना होगा फिर 50 kg, ये कितना होगा 50 kg, दैट मींस इस पोर्शन का मास 50 kg होगा, इस पोर्शन का मास 50 kg होगा। उसी तरह से अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर उसको हम स्प्लिट करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, ऐसा आप लिख सकते हैं कि हम T/2 यानी यहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 3 लो, है ना, हम ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर विल बी सेम, बिकॉज टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, वो मास पे डिपेंड नहीं है, हम उसको कितने भी पीसेस कर लें, डिवाइड कर लें कितने पोर्शन में, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ओके। उसके साथ साथ प्रेशर कितना है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर भी क्या रहेगा सेम रहेगा, प्रेशर भी डिवाइड नहीं होगा, दैट मींस बिकॉज प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो उस वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेशर मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रेशर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट एरिया, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया का बात कर रहे हैं, वो एरिया एग्जैक्टली सेम है, इसलिए प्रेशर भी सेम ही रहेगा, प्रेशर भी डिवाइड नहीं होगा। मिसाल फॉर एग्जांपल दिस इज द रॉड, ये रॉड है, प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एग्जैक्टली सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रेशर भी क्या रहेगा सेम ही होगा। उसी तरह से एनर्जी है ना, एनर्जी एग्जांपल है, एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास, एनर्जी डिपेंड है मास पर, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी U/2, दिस इज अगेन U/2, ओके, दैट मींस इन दिस एग्जांपल द मास एंड एनर्जी, है ना, ये वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम भी हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, ये एनर्जी होती है V/2, in this case the mass energy है ना, U का एनर्जी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी U फॉर एनर्जी एंड V वॉल्यूम, वो क्या होंगे, दे आर कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज दे डिपेंड ऑन द मास, अगर एक बॉडी का मास कम होगा तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यूज चेंज होंगी, बट ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो दो प्रॉपर्टीज, हालांकि हमने यहाँ पे मास को डिवाइड करें, मास पे डिपेंड नहीं है ना, बिकॉज इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, वो डिपेंड मास पे नहीं है, इसके टेम्परेचर प्रेशर ये क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट और ऑन द मास, हेंस दे आर कंसीडर्ड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके फ्रेंड्स हमको फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या है समझना होगा, उसके बाद उसके टाइप्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एग्जांपल्स, ये जो प्रॉपर्टीज गिवन है वो प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, ठीक है, वो चेक करने का एक सिंपल मेथड ये है, आप इस मेथड से कोई भी प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं और उसका फिर वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट विद द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम।
और फ्रेंड्स फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन सिंपल वर्ड इट मींस बैलेंस। आप समझ सकते हैं उसको, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। मींस इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट समझने के लिए मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बॉडी है, देयर इज अ बॉडी, इस साइड से सपोज फोर्स एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन और इस साइड से फोर्स एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन। नाउ इन दिस केस दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दोनों साइड से फोर्स सेम एक्ट हो रहा है, इसलिए ये बॉडी क्या है, बैलेंस करनी चाहिए। यानी बॉडी इस साइड भी मूव नहीं हो सकती, इस साइड भी डिस्प्लेस नहीं होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर सपोज यहाँ पर मैं 50 जगह 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है बिकॉज ये जो बॉडी है इस साइड का जो फोर्स है लेफ्ट साइड, उस फोर्स मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए फोर्स किस डायरेक्शन डिस्प्लेस होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, हेंस इट इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस इक्वल, बैलेंस। बैलेंस कब होगा, सपोज यहाँ पर कितना है फोर्स 50 न्यूटन, दैट इज द सिंपलेस्ट concept or meaning of balance, equilibrium, that is balance the body or the system which is in balanced condition. Now thermodynamic equilibrium तीन टाइप्स के हैं, ओके। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो है फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, देन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ओके। फर्स्ट हम समझना इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, बैलेंस है, ठीक है। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स में जो तीन टाइप्स के हैं, कौन से हैं? Now first one is the thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Next is mechanical equilibrium, and third is the chemical equilibrium. Chemical equilibrium. Okay friends, अब thermal, mechanical और chemical equilibrium क्या है? सिंपलेस्ट या सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम मींस कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम्स विल बी कांस्टेंट, यानी जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, दैट मींस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, सिंपल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, द सिस्टम इन विच देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो मैंने एग्जांपल दिया था इससे पहले, एक्चुअली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का ही था, जहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होंगे। फोर्सेस क्या रहेंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, ठीक है, वो इनबैलेंस नहीं रहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम इट मींस देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उस सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, समझने के लिए एक्चुअली, ठीक है। यानी मींस अगर हम इसको वन लाइन डिफाइन करें, थर्मल इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू टेम्परेचर, mechanical equilibrium relates with force, it relates with the force, and chemical equilibrium relates with the mass or chemical reaction, chemical reaction, ओके फ्रेंड्स। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, वर्ड एक याद रखना है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस कंडीशन है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप्स के हो सकते हैं या होने चाहिए एक्चुअली, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस force will be constant or there will be no unbalanced force. Chemical equilibrium means mass और chemical reaction of the system will be constant. Okay friends, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पॉइंट और कंटिन्यू करेंगे।